मंडी बचाओ, पंजाब बचाओ व किसान बचाओ, देश बचाओ के नारे के साथ पंजाब के जिला मोगा के कस्बा भागनपुराना में आरती व किसान मजदूर व मुनीमों ने फाउंडेशन ऑफ आरती एसोसिएशन पंजाब के बैनर तले संयुक्त रूप से एक महासम्मेलन किया, जिसमें आरती वर्ग के पंजाब प्रधान विजय कालरा, भागनपुरा के प्रधान अमरजीत सिंह, संयुक्त किसान मोर्चा की कार्यकारिणी टीम के सदस्य गुरनाम सिंह चंद व किसान नेता प्रोफेसर मंजीत सिंह ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस मौके पर बड़ी संख्या में आरती वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर ने राज्य के अलग अलग जिलों से पहुंचकर हाजिरी लगाई। मोगा से भजन लाल की रिपोर्ट, लाइव भारत। सम्मेलन हैगा कि मंडी बचाओ, पंजाब बचाओ, किसान बचाओ, देश बचाओ सम्मेलन है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ वर्ग ही तकरीबन ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆੜਤੀਆ, ਮਨੀਮ, ਲੇਬਰ, ਕਿਸਾਨ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ BKU ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਟਡੂਨੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੰਡੀ ਬਚਾਓ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਣ ਜਾ ਰਹੇ हैं सारे साथियों ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। जो FCI का फरमान जारी हुआ था उससे आप क्या समझते हो, किसको नुकसान होने जा रहा है, क्या नुकसान होगा उसका? ਜਿਹੜਾ FCI ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲੀ ਕੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆੜਤੀਏ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ बाद किसान ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। जैसे कि FCI ने सेंटर सरकार ने बोल दिया भी FCI अब जो अदायगी होगी वो आरती के थ्रू ही होगी, फिर ये रैली क्यों, ये सम्मेलन क्यों? देखो ये है भी ये जो सेंटर सरकार कहती है ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ 2014 ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ BJP ਦੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਮ ਸਪੀਚ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਵਿਕਨੇ ਨਹੀਂ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਵਿਕਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਊਂਗਾ ਭਾਈਓ ਭੈਣੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਤੇ ਨਾ ਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਨੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। तो आपकी मांगे क्या है, मतलब सम्मेलन के थ्रू सरकार को क्या कहना चाहते हो? ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗਾ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ। 200-250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ FCI ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ EPF ਦਾ ਝੰਜਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ EPF ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 4 ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਤਕੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ढंग ਨਾਲ ਚੱਲ सके। तो पंजाब CM के साथ आरती एसोसिएशन की मीटिंग भी हुई थी, उसका क्या नतीजा निकला और आपको क्या आश्वासन मिला यहाँ से? देखो मीटिंग ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੜ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਆਊਗਾ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਊਗੀ, ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ FCI ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ FCI ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ EPF ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 4-5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ FCI ਦਾ GM ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ।
ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸੇਮ ਉਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ? ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ है। अगर आज आपका सम्मेलन सफल हो जाता और फिर भी आपकी मांगें नहीं पूरी होती या सरकार नहीं मानती तो आपका अगला कदम क्या होगा? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਆਪਦੀ ਅਸੀਂ। अभी जैसे गेहूं की फसल आ रही है मंडियों में, आपका कैसा रहेगा उस मंडियों में? काम करेंगे या नहीं करेंगे या बायकॉट करेंगे, क्या करेंगे? ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂਗੇ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। सरकार कहती है कि सीधी अदायगी करनी है किसानों को, आप उसमें क्या नुकसान मानते हो? तो सारा नुकसान ही है सीधी अदायगी में। जो किसान का और आड़तीए का रिश्ता है, उसकी मिसाल है कि पिछले लंबे समय तो 2006 तो सरकार ये कोशिश कर रही है भी सीधी अदायगी किसानों को दी जाए, पर उस वेले भी जो समा आया तो किसानों ने ये केस जो हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट च डिसीजन होया भी किसान तो छड्ड दो, किसान अदायगी आड़तियां राही लैनी चाहुंदा जां सीधी लैनी चाहुंदा है। तो 2013 च सरकार हाई कोर्ट का फैसला आने तो बाद सिर्फ 2 किसानों ने 2 सीजन जी पेमेंट है वो खरीदार तो एजेंसियां तो लई, बाकी टोटल किसान ने जी अदायगी हैगी आ वो आड़तियां राही लई है। इस करके इन्हों जो किसानों की मंग ही नहीं, जो चीज़ किसान चाहते उन्होंने लागू करना चाहिए, ना कि उन्होंने थोपना चाहिए। जे किसान चाहूगा भी मैं सीधी लैनी है तो सीधी ले ले, जे चाहता मैं आड़ती राही लैनी है तो आड़ती राही ले ले। तो इन्हों इस गल दखलअंदाजी देनी नहीं चाहिए। देखो, किसान लीडर तो इसमें शामिल हो ही रहे हैं। इसके अलावा असल में बेसिकली जो आड़तियों की फेडरेशन है और पंजाब की भी यूनियन है जिसके चीमा जी लीडर हैं फेडरेशन के, कालरा जी लीडर प्रधान हैं, तो वो कुल मिला के पूरे एरिए के, पूरे पंजाब हरियाणा सब जगह के यहाँ आड़ती एसोसिएशन अपने महासंगठ जी एक पंचायत कर रहे हैं, जिसमें चुड़ूनी साहब जी तो बैठे ही हैं और लीडर भी राज्यपाल जी और बड़े बड़े लीडर किसान लीडर उसमें आके शामिल हो रहे हैं। और इसका मुख्य मकसद तो यही है कि जो मोदी जी पार्लियामेंट में जाके बार बार कहते हैं कि हमने जो मिडल मैन है, दलालिए, वो ख़त्म करने हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी खुद कहीं ना कहीं अडानी अंबानी की दलाली वाला हिसाब किताब हो गया है। लोगों को पूछते नहीं हैं। आप आड़तियों को अलग करना है तो आड़तिया की एसोसिएशन है, उनसे मीटिंग कर लो। किसानों के ऊपर कानून बनाना है तो किसानों की कितनी यूनियन है जो अभी कर रहे हैं, तो उसको पहले ही मीटिंग करके बात करनी चाहिए ना। ये तो लोकतंत्र है, ये कोई किसी के थोड़ी के रात को सपना आया या किसी ने तीसरी देर ने कह दिया कि चलो आप करो तो, और उन्होंने उठा के ऐसे कानून बना दिए। और तीसरी बात आप देखिए कि लेबर पर भी जो उनके 22 सितंबर को जो पार्लियामेंट में पास हुआ कि 44 कानून तोड़ दिए और उसके जगह 4 लेबर कोड बना दिए। किसी ट्रेड यूनियन से बात अच्छे ढंग से किया नहीं है। तो सब अब पब्लिक सेक्टर को आप बिक्री कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉइज़ को पूछो कि क्या आप इसको प्रॉफिट में ले जा सकते हैं, अगर कोई लॉस में है तो उनकी मदद लो। उनको देखो, ये सरकारें जो लोकतंत्र में होती हैं लोगों के लिए होती हैं, लोगों ने चुनी हुई सरकारें होती हैं, उनके फ़ायदे के लिए होती हैं। ये थोड़ी है कि तो आप कोई भी डंडा कहीं के किसी के इशारे पर लोगों के पैर चलाना शुरू कर दो और बने बनाती लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी, अब रेलवे की 100 लाख करोड़ टोटल पब्लिक सेक्टर की प्रॉपर्टी बेच आप उठा के अडानियाँ अंबानियाँ जो ऐसे उनके भाई बहनों को दे रहे हो, ये तो एक पाप है, देशद्रोही है। ये तो इतना ही कहना है कि ये जगह जगह जो रैलियाँ पंजाब हरियाणा यूपी सारे देश में असम पश्चिमी बंगाल तक किसान लीडर भी कर रहे हैं, लोग भी इस बात पर गुस्से में है कि ये निज़ाम को सोचना चाहिए कि अगर हम लोगों के लिए कुछ भी अच्छा करना है, बुरा करना है, उनकी सलाह तो ले लो। अब मोदी जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि किसानों को तो पता ही नहीं है, मैं तो इनका भला करना चाहता हूँ। तो ये जो देश के हालात बन गए हैं बड़े अफरा तफरी वाले, बहुत ही देश के अंदर आर्थिक और राजनीतिक तो सामाजिक तीनों किस्म का गहरा संकट आने वाला है, बुरुओं पर खड़ा है, दस्तक दे रहा है।
मोदी जी को दिख नहीं रहा है। दिल्ली की ब्रुओं पर 4.5 महीने होने वाले लाखों किसान बैठे हैं अपने देश के, सुनने के लिए तैयार नहीं है, आके बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो हालात बने हैं ये ठीक नहीं है, और उसकी रोष की वजह से सारे देश और दुनिया में ये रोष जा रहा है और दुनिया देख रही है। देखो जो लातों के भूत है बातों से नहीं मानते हैं, और हम चुड़ूनी साहब बैठे हैं सुबह से यही बैठ के तैयारी कर रहे हैं कि अगली लातें कैसी तैयार करनी है। क्यों नहीं ये समझते हैं भाई? तो आप सोच के देखिए, आप एक साधारण सिटीजन हैं और अपना मीडिया का कर्मी है, काम कर रहे हैं। क्या आपको अगर आप लीडर हो तो एक बार आपके मन में नहीं आएगा कि देश के हमारे जो अन्नदाता हैं 300 से ऊपर वहाँ शहीद हो गए हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं आप। तो इसलिए जो इतनी गैर संवेदनशीलता होएगी, इतना पत्थर दिल हो जाएगा, और आप एक बड़े कारपोरेट देसी और विदेशी दोनों के आप एक एजेंट के तौर पर, एक दलाल के तौर पर काम करोगे, लेकिन लोगों के नुमाइंदा होने के तौर पर काम नहीं करोगे। कि आप पॉपुलर लीडर हैं, आप के कंधे पर पूरे देश ने वोटें डाल के जिम्मेदारी दी है, आपकी जवाबदेही है उन लोगों के प्रति, वो छोड़ करके आप कोई और भाषा बोलोगे और तेवर दिखाओगे, तो फिर उसका एक ही हल है कि लोग भी अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, हर तरीके से शांतमयी रह करके। यहाँ तक भी होगा, अगर पार्लियामेंट के अंदर एमपी की नहीं सुननी है और मिनिस्टर साहबानों की नहीं सुननी है, विरोधी पार्टियों की नहीं सुननी है, तो ये किसान खुद मई में पार्लियामेंट के सामने अपनी बात सुनाने के लिए, सीधी बात सुनाने के लिए जाएंगे।